क्वेश्चन दिया है if 10 raised to x upon 10 raised to y is equal to 100, then x is equal to. So the equation given here is 10 raised to x upon 10 raised to y is equal to 100. अब लेफ्ट हैंड साइड पर we could apply the law of indices. So इसे हम combine करके लिख सकते हैं as 10 raised to x minus y. And on the right hand side, 100 could be expressed as 10 square. So दोनों तरफ अगर हम देखें तो बेस सेम है, तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. So therefore x minus y is equal to 2. So therefore x is equal to, अब minus y on right hand side transfer कर देते हैं हम. So we have y plus 2. So x is equal to y plus 2. ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन ए. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ root 9 raised to 7 into root 3 raised to minus 5 is equal to 3 raised to x. So we have root of 9 raised to 7 into root 3 raised to minus 5 is equal to 3 raised to x. अब root 9 होता है 3, so square root of 9 is 3, so we replace this by 3, तो ये हो जाएगा 3 raised to 7. अब root 3 को हम लिख सकते हैं as 3 raised to half raised to minus 5 is equal to 3 raised to x. So we have 3 raised to 7 into half into minus 5, that's minus 5 by 2 is equal to 3 raised to x. Now we again use the law of indices over here. तो ये हो जाएगा 3 raised to 7 minus 5 by 2 is equal to 3 raised to x. Equalizing the denominator, we get 3 raised to 14 minus 5 by 2 is equal to 3 raised to x. So finally 3 के पावर में मिलता है 9 by 2. So 3 raised to 9 by 2 is equal to 3 raised to x. अब बेस सेम है दोनों तरफ, तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं. So we could say x is equal to 9 by 2, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. The question is 1 upon 216 raised to minus 2 by 3 upon 1 by 27 raised to minus 4 by 3 is equal to x. The value of x is. So here we have 1 by 216 raised to minus 2 by 3 divided by 1 by 27 raised to minus 4 by 3 is equal to x. अब 216 है 6 क्यूब and 27 है 3 क्यूब. So 216 is 6 cube and 27 is 3 cube. So we replace 216 by 6 cube, or we could write this as 1 by 6 the whole cube raised to minus 2 by 3, and in the denominator we have 1 by 3 the whole cube raised to minus 4 by 3 is equal to x. अब ये 3 और ये 3 हम कैंसिल कर देते हैं, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाता है. So therefore we have 1 by 6 raised to minus 2 upon 1 by 3 raised to minus 4 is equal to x. Now if we simplify further, we get x is equal to,
अब 1/6 का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं दैट बिकम्स 6 एंड जो पावर है -2 दैट बिकम्स 2 डिवाइडेड बाय 1/3 का रेसिप्रोकल इज 3 एंड जो -4 है ये हो जाएगा 4. Now 6 square is 36 and 3 raised to 4 is 81. So if we reduce this further, 9 4s is 36, 9 9s is 81. So we have the answer as 4/9. And if we check the options, 4/9 is option B. यहाँ जो इक्वेशन दिया है 6 raised to x plus 1 minus 6 raised to x minus 1 is equal to 35 और हमें वैल्यू ढूंढनी है x की. तो पहले तो हम लॉ ऑफ इंडाइसिस यहाँ पे यूज करते हैं. a raised to m plus n, तो इसे हम लिख सकते हैं as a raised to m into, यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, into 6 raised to 1, right? a raised to m into a raised to n. और यहाँ पर ये आएगा 6 raised to x, सबट्रैक्शन है तो अपॉन में आएगा 6 raised to 1 is equal to 35. अब ये दोनों टर्म्स में से हम 6 raised to x ये कॉमन फैक्टर ले सकते हैं. तो ये तो कॉमन चला गया तो यहाँ रह जाएगा 6, फिर आएगा माइनस. अब 6 raised to x कॉमन है तो जो टर्म रह जाएगा वो है 1/6 is equal to 35. डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज कर देते हैं. सो वी हैव 6 raised to x, ये हो जाएगा 36 minus 1/6 is equal to 35. Now proceeding further, ये आएगा 6 raised to x into this difference is 35, so 35/6 is equal to 35. ये इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 6 raised to x is equal to 35 into 6 divide by 35. 35 और 35 कैंसिल आउट हो जाते हैं तो रहता है 6 raised to x is equal to 6. बट राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं एज 6 raised to 1. सो वी कंपेयर बोथ द साइड्स, बेस तो सेम है तो पावर्स को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी एज 1. तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. यहाँ पर x की वैल्यू है 1, सो द ऑप्शन इज D. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन D. क्वेश्चन है if 3 raised to 4x minus 2 is equal to 729, then the value of x is. अब यहाँ हमें दिया है 3 raised to 4x minus 2 is equal to 729. Now we know that 3 raised to 6 इसकी वैल्यू होती है 729. तो ये 729 को हम रिप्लेस करेंगे बाय 3 raised to 6 से. 3 raised to 4x minus 2 is equal to 3 raised to 6. अब दोनों तरफ बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. सो वी हैव 4x minus 2 is equal to 6. Therefore 4x is equal to 6 plus 2, that becomes 8. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी एज 8/4 is equal to 2. एंड अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन C. If 3 raised to x minus y is equal to 27 and 3 raised to x plus y is 243, then x is equal to. तो यहाँ पर पहला इक्वेशन दिया है 3 raised to x minus y is equal to 27. अब 27 को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय 3 क्यूब. अब दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम है सो वी कुड इक्वेट द पावर्स. तो हमें मिलेगा x minus y is equal to 3
We call this as equation number 1. अब दूसरा इक्वेशन कंसिडर करते हैं. 3 raised to x plus y is equal to 243. अब यहाँ पर 243 को हम रिप्लेस करेंगे बाय 3 raised to 5. अगेन बेस वैल्यू सेम है तो पावर्स हम इक्वेट कर सकते हैं. So we have a second equation, x plus y is equal to 5. This is equation number 2. And we are interested in the value of x. तो ये दोनों को हम simultaneously solve कर देते हैं. तो पहला equation है x minus y equal to 3. And दूसरा equation है x plus y is equal to 5. Now adding the two equations, ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाते हैं. x प्लस एक्स दैट बिकम्स 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट इज 8. तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी एज 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी. इफ 10 by 3 times 3 raised to x minus 3 raised to x minus 1 is equal to 81, then the value of x is. तो एक मेथड है कि हम ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देखें एंड वेरीफाई करें कि किस में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैच हो जाते हैं. सो लेट अस डू दैट. अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं एज x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं क्या आती है इसमें. So 10 by 3 into 3 raised to x यानी 3 square will be 9 minus 3 raised to x minus 1 यानी 2 minus 1, so that is raised to 1. ये कैलकुलेट करते हैं. 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो ये आ जाता है 30 minus 3 which is 27 और हमें आंसर चाहिए 81. तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता. एक बार ऑप्शन सी चेक करते हैं बिकॉज 1 से आंसर और छोटा आएगा. सो लेट अस चेक विद ऑप्शन सी. सी में है x इज इक्वल टू 3. सो लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करते हैं. ये आ जाएगा 10 by 3 इंटू 3 raised to 3 that is 3 cube. अब 3 cube होता है 27 minus 3 raised to x minus 1, so 3 minus 1 that is 2. तो ये आएगा 3 1s are 3, 3 9s are 27, ये आ गया 90 minus 3 square is 9. So that is equal to 81 which matches with the right hand side. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, x is equal to 3. If 6x raised to 6 is equal to 6 raised to 2 cube, find the value of x. तो यहाँ में दिया है 6x raised to 6 is equal to 6 raised to 2 cube. अभी ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 6 raised to 6 into x raised to 6. तो यहाँ पे हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज किए. इज इक्वल टू 6 raised to, अब 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं. So therefore x raised to 6 is equal to, ये 6 raised to 6 को इस तरफ डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 6 raised to 8 upon 6 raised to 6. So therefore x raised to 6 is equal to, again using laws of indices, this becomes 6 raised to 8 minus 6. तो ये आएगा x raised to 6 is equal to 6 raised to 2. अब दोनों तरफ हम 6th रूट ले लेते हैं. that is x raised to 6 raised to 1 by 6 और इस तरफ 6 square
रेज टू 1/6। तो ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और इधर 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये आ गया 6 रेज टू 1/3। लेकिन 6 रेज टू 1/3 होता है क्यूब रूट ऑफ 6, सो x की वैल्यू है क्यूब रूट ऑफ 6, which is option C. If 2 raised to x equals cube root of 32, then x is equal to. So let us solve this. Now 2 raised to x is equal to cube root of 32. So therefore we could say 2 raised to x is equal to cube root of, now 32 could be expressed as 2 raised to 5. Now we know that nth root of a raised to m could be written as a raised to m upon n. So using this formula over here, we get 2 raised to x is equal to 2 raised to 5/3. Now if we compare both sides, we could easily say that x is equal to 5/3, and that is option D. So our answer for this question is option D, 5/3. अब यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है और हमें x की वैल्यू ढूंढनी है. लेट अस राइट द इक्वेशन. 8 raised to x minus 2 into half raised to 4 minus 3x is equal to 0.0625 raised to x. अब 8 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 2 क्यूब, फिर फर्दर आएगा रेज टू x माइनस 2 इनटू, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले हाफ का तो ये रहेगा 2 रेज टू माइनस 1 रेज टू 4 माइनस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एक्सप्रेस करते हैं इस टर्म को एज 625 अपॉन 10,000 बिकॉज 4 डेसिमल प्लेसेस है, रेज टू x, एंड फर्दर ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 रेज टू, दिस विल बी 3x माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6 इंटू 2 रेज टू, ये -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रहेगा -4 and -1 into -3x, that's plus 3x is equal to, this if we simplify we'll get 1 and ये आ जाएगा 16 times, so 625 into 16 is 10,000, so here we get 1/16. अब 1/16 को भी हम 2 के पावर्स में एक्सप्रेस करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में ये पावर्स हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि बेस सेम है, तो ये रहेगा 2 रेज टू 3x minus 6, and if we add this we have -4 plus 3x. Now this could be written as 2 raised to -4 raised to x, because this is 1/2 raised to 4, उसका reciprocal लेंगे तो 2 raised to -4, the whole thing raised to x. So here we have 2 raised to, now 3x plus 3x that is 6x, ये हो जाता है -10, और यहाँ पर 2 रेज टू -4x. अब बेस सेम है तो पावर्स को भी हम इक्वेट कर देते हैं, सो वी हैव 6x minus 10 इज इक्वल टू -4x. x टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, सो 6x plus 4x इज इक्वल टू 10, ये टोटल आएगा आपका 10x इज इक्वल टू 1. So x is equal to 10 divided by 10, that is equal to
1। सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इफ रूट ऑफ 5 प्लस 3 रूट एक्स इक्वल टू रूट 14 देन एक्स इज इक्वल टू, तो हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 रूट एक्स इज इक्वल टू 14। अब एक मेथड है हम ऑप्शंस ट्राई आउट करें एक्स की वैल्यू, वो तो पॉसिबल है ही। अब इसे एक्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी स्क्वायर रूट एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। सो वी से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो लेफ्ट हैंड साइड में वी वुड ऑब्टेन 5 प्लस 3 रूट एक्स एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 14। सो वी हैव 3 रूट एक्स इक्वल टू 14 माइनस 5, so 3 root x is equal to 9। अब 3 डिवाइड करता है यहाँ पर, so we have root x equal to 9 divided by 3, so root x is equal to 3। again squaring both sides, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, so we have x is equal to, इस तरफ 3 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, so x is equal to 9। एंड ऑप्शंस अगर चेक करते हैं तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी। यहां दिया है 2 रेज टू रूट एक्स, द होल थिंग रेज टू रूट एक्स इज इक्वल टू 64, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, सो वी हैव 2 रेज टू रूट एक्स, रेज टू रूट एक्स is equal to 64। अब यहाँ पर हम ये वाला लॉ यूज करेंगे, a raised to m raised to n is a raised to m into n, so therefore we get 2 raised to, ये हो जाएगा root x into root x is equal to 64। now root x into root x is x, so 2 raised to x is equal to, अब यहाँ पर 64 को हम लिख सकते हैं as 2 raised to 6। so if we compare both the sides we get x is equal to 6 and the answer is option B। क्वेश्चन दिया है if x raised to root x is equal to root x raised to x then the value of x is, अब यहाँ पर we have x raised to root x equal to root x raised to x। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये as it is रहने देते हैं, x raised to root x। अब ये जो root x है इसे हम लिख सकते हैं as x raised to half the whole thing raised to x। Now half into x becomes x by 2, so we have x raised to root x is equal to x raised to x by 2। अब दोनों तरफ बेस इक्वल है तो हम पावर्स को भी इक्वेट कर सकते हैं, so therefore we could say root x is equal to x by 2। अभी स्क्वायर रूट एलिमिनेट करने के लिए we can square both sides, so squaring both the sides, यहाँ पर अगर स्क्वायर करते हैं ये हो जाएगा x, इस टर्म का स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड नीचे 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है 4x is equal to x square। if we rearrange we have x square minus 4x is equal to 0, taking x as the common factor, ब्रैकेट में आता है x minus 4 is equal to 0, so we have two options, x is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0। तो यहाँ से हमें x की दूसरी वैल्यू मिलती है as 4। we have two values 0 और 4। अब यहाँ पर ऑप्शंस अगर हम देखें, 0 वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, yes we have option D
विद वैल्यू 4, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, x इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन है इफ a अपॉन b रेज टू x minus 1 is equal to b upon a raised to 3x minus 2, then the value of x is। अब यहाँ पर अगर हम बेस देखें, यहाँ पर बेस है a अपॉन b और यहाँ पर बेस है b अपॉन a, तो एक तरफ का जो बेस है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना होगा, तो दोनों तरफ बेस सेम हो जाएंगे। सो इसे हम एज इट इज रहने देते हैं, a अपॉन b रेज टू x माइनस 1। अगर इसका हम रेसिप्रोकल लें, दैट इज इफ वी मेक इट a अपॉन b, तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा माइनस ऑफ 3x माइनस 2। अब दोनों तरफ बेस इक्वल हो गए, सो वी कैन इक्वेट द पावर्स। सो देयरफॉर हमें मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x माइनस 2। ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो वी गेट x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। x टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x, एंड ये नेगेटिव 1 इस तरफ आएगा तो ये जाएगा प्लस 1। सो वी गेट 4x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी एज 3 अपॉन 4, एंड ऑप्शंस चेक करते हैं, तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन सी, 3/4। क्वेश्चन है इफ 9 raised to 2x is equal to 27 upon 3 raised to x plus 2, then x is equal to। तो पहले ये x टर्म्स एक तरफ हम ले लेते हैं और इस 9 को हम लिख सकते हैं एज 3 स्क्वायर रेज टू 2x, और ये वाला टर्म इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 3 रेज टू x plus 2 is equal to 27. Now 2 into 2x, that becomes 4x, तो ये हो जाएगा 3 raised to 4x into 3 raised to x plus 2 is equal to, now 27 could be expressed as 3q. Again using law of indices, ये पावर्स हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 raised to 4x plus x plus 2 is equal to 3q. So we have 3 raised to, अब ये टोटल हो जाता है 5x plus 2 is equal to 3q. अब दोनों तरफ बेस इक्वल है तो हम पावर्स इक्वेट कर सकते हैं, so let us equate the powers. So therefore we could say 5x plus 2 is equal to 3. So 5x is equal to 3 minus 2, that is 1. So therefore the value for x is 1 upon 5. Question है solve for x if x raised to a cube into x raised to b cube into x raised to 3ab times a plus b is equal to 2 raised to 5 raised to 25 and a plus b is equal to 5। तो जो इक्वेशन दिया है वो है x raised to a cube into x raised to b cube into x raised to 3ab times a plus b is equal to 2 raised to 5 raised to 25। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं, ये पावर्स हम ऐड कर देंगे। सो देयरफॉर वी हैव
x रेज टू, ये तीनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू, अब ये 5 इंटू 25 हो जाएगा 125. So this is 2 raised to 125. Therefore, now a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, ये actually expansion होता है a plus b the whole cube का, correct, is equal to 2 raised to, now 125 को हम लिख सकते हैं as 5 cube. बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है that a plus b is equal to 5. तो यहाँ जो a plus b है इसे हम 5 लिख सकते हैं. So we have x raised to 5 cube is equal to, और राइट हैंड साइड पर मिलता है 2 raised to 5 cube. अब दोनों तरफ पावर्स सेम है तो हम बेस को भी इक्वल कर सकते हैं. So therefore we have x is equal to 2. ये याद कीजिए, if we have x raised to n is equal to y raised to n, it means that x is equal to y. यहाँ पे भी x raised to 5 cube is equal to 2 raised to 5 cube, so x is equal to 2. And इसका सही आंसर अगर हम देखें, so it is option A. If root 2 is to 1 plus root 3 is equal to root 6 is to x, then x is equal to. तो यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो है root 2 is to 1 plus root 3 is equal to root 6 is to x. और हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को इस तरफ ले आते हैं. So x will be equal to root 6 into 1 plus root 3 divided by root 2. अब root 6 को हम split कर सकते हैं. देखिए, we can split root 6 as root 2 into root 3 into 1 plus root 3 डिवाइडेड बाय रूट 2. अब ये रूट 2 और ये रूट 2 हम कैंसिल कर देते हैं और x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है. रूट 3 इंटू 1, सो दैट इज रूट 3, एंड रूट 3 इंटू रूट 3, दिस इज 3. सो वी हैव रूट 3 प्लस 3. लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. यस, सो वी हैव द ऑप्शन डी एज द आंसर. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी.